Yashovardhan Azad, how would you respond to the politicians you've heard on today's show? Like I said, the promises have been made, the finger pointing is happening, but the reality is difficult to ignore. The fact that Rahil Sheikh is out there, there doesn't appear to be any real danger to him from a criminal law perspective. And one is wondering what it is going to take for someone to draw a line in the sand and say enough is enough. I'll tell you, Shiv, what is the crux of the matter. I agree with both the politicians the way they have described, and Shaina described it very well. I mean, the tweet, except for the Hindu-Muslim part of it. You know, the real issue here is that the way a criminal should be punished, police uses loopholes in the law to benefit those. Interrupting you. Sorry for interrupting you. I'm letting you continue. I just want to say that Rajshri More is joining this broadcast. I'm putting her on the screen. She's listening to your words as well. Rajshri, welcome. Yashovardhan Azad is finishing his point. Then I'm coming to you. Mr. Azad, continue, sir. Rajshri is listening. What I'm saying is the police uses loopholes to help such people, whether they use their political clout, whether they use their business clout, and there is a lot of clout in Mumbai. So here is a woman who has been abused, who has been slandered in the worst manner, and the appropriate section has not been used. Why? Because it's a 3 years sentence. Yeah. The other thing is, any person of this kind, anywhere in the world, Shiv, would have been caught and brought straight by the scruff of his neck to the police station, and the police would have given the reasons for his detention, for his arrest, and not let him go till the magistrate gave him bail the next day, but would have presented the case. That is the issue which is the crux of the matter. Otherwise, I'm in total agreement with the politicians, the way they have said. You've hit the nail on the head. You know, anybody else who was not politically connected would have been dragged to jail. That is the point that we are making here as well. Rajshri More, this video that has gone viral, you have heard what the politicians have said, but the point is 24 hours later, Rahil Sheikh, who said BC to you 5 times, he was using Hindi galis to abuse you in that video, he has not been arrested and serious sections have not been slapped against him. Your reaction to that, Rajshri? See, जो सेक्शंस लगे हैं, हालांकि मैं नहीं जानती कि वो सीरियस है या नहीं है. मुझे लॉ इतना समझ में नहीं आता है जितनी मुझे इंसानियत समझ में आती है. तो ये जो हुआ है ना, ये जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे एक स्टोरी है. बताइए. ये कल रात को एक्सीडेंटली नहीं हुआ है. ये मुझे टारगेट किया गया है, मुझ पर अटैक किया गया है. 2 days बिफोर मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी कि आप प्लीज नॉन मराठीज के पीछे ना पड़े. वो हमारे भाई बहन हैं, वो यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए हैं. और एक मैं मराठी होने के बावजूद ये बात बोलती हूँ कि प्लीज आप अपने मराठी लोगों को बोलो मेहनत करने के लिए. आप दूसरे के थाली का खाना मत छीनो, अपनी थाली खुद सजाओ. जी. तो उसके बाद अचानक मैं व्यवसाय करती हूँ मुंबई में, अंधेरी लोखंडवाला मार्केट में. जी. मैं काम करती हूँ, मेरा बिजनेस है. तो सीधा मेरे बिजनेस को टारगेट किया जाता है. मुझे धमकियां आती है कि तुम्हारी शॉप तोड़ी जाएगी, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें रोड पे लेके आएंगे, अगर तुम अपने शब्द वापस नहीं लोगी और वीडियो डिलीट नहीं करोगी. 200 लोग मुझ पर चढ़ के आते हैं. उसी दौरान हमारे एरिया का ओशिवरा पुलिस स्टेशन मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देता है. मेरे व्यवसाय को पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं और फिर ये सब होने से रोकते हैं कि ये इन लोगों ने जो धमकियां दी है, इस लड़की को कुछ ना हो. एटलीस्ट मुझे अपने मुंबई पुलिस पे आज गर्व है. करेक्ट. लोकल पॉलिटिकल जो पार्टियां जो कर रही है, हमारे लिए मुंबई में ये जो लोकल पॉलिटिक्स जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फादर फिगर होना चाहिए. ये हमारे मुंबई के रखवाले हैं.
जी। अब रखवाले ही मारने के लिए रेडी हो जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? अब वो मराठी हो या वो नॉन मराठी हो। जी, मैं एक बात आपको मैं इंफॉर्मेशन एक बार आपसे शेयर करूंगा राजश्री जी। यशोवर्धन आज़ाद जो एक वेटरन पुलिस ऑफिसर हैं वो समझाएंगे, और आप प्लीज सुनिए। यशोवर्धन जी, प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी इफ पॉसिबल what sections have not been applied on Rahil, the point that you were just making, so Rajshri can actually understand why serious sections have not been applied. Rajshri, closely सुनिएगा अभी। Yes, यशोवर्धन जी। सबसे पहले मैं आपको दाद देना चाहता हूं कि जो आपने अभी कहा कि मराठी लोग होने के नाते भी आपने नॉन मराठी से अपील की कि वो नॉन मराठीज जो हैं उनके खिलाफ ऐसे आप अपशब्द न इस्तेमाल करें और उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करें। आई सल्यूट यू फॉर दिस। मेरा ये कहना है, और मैं ये बता रहा था शिव अरूर को कि मैं पुलिस, आपने कहा कि आपको पुलिस पर गर्व है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने आपको रियली अगर प्रोटेक्शन दिया होता तो वो पुलिस वाला आपके साथ होना चाहिए था और तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जब देखा पंचायती करने के बजाय, जब वो आपको गंदी गंदी गाली दे रहा था, आपके खिलाफ धमकी दे रहा था, जाओ जाओ कह रहा था, मैंने देखा उसका तरीका, और जिस स्थिति अर्धनग्न स्थिति में था, पुलिस का ये फर्ज बनता था कि वो जो सेक्शन, जो नए सेक्शंस बीएनएस के लगे हैं जिसमें 3 साल की सजा है, एक औरत को उस तरह का क्राइम करना, उसके खिलाफ उसको असॉल्ट करके अत्याचार वाले जो सेक्शंस थे वो लगाने चाहिए थे, और ये उसे कॉलर पकड़ के थाने में बंद करना चाहिए कि ये इस स्थिति में नहीं है कि इसे छोड़ा जाए, क्योंकि ये पब्लिक स्पैट था, सबके सामने था। और दूसरे दिन उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, और मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे बेल मिलता या वो जुडिशियल कस्टडी पे जाता। और इसलिए मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की, छोड़िए पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि लोकल पॉलिटिशियंस तो माँ बाप के तरह होने चाहिए, वाकई वो इस तरह के होने चाहिए। लेकिन दुख की स्थिति है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है पुलिस, उसको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी उस समय, वहां बैठ के पंचायती नहीं करनी चाहिए था। और मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, दाद देता हूं कि जो आपने इतनी बहादुरी से वो चीज कही कि नॉन मराठीज को आप मत तंग करें, क्योंकि उनका भी हाथ है बंबई को बनाने में। राजश्री, कोई रिएक्शन? बिल्कुल, हाँ जी सर, जी बताइए। मेरी तरफ से सर, मैं थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ये लॉ बताया। हालांकि मैंने बोला ना कि मुझे लॉ नहीं पता है, आइडिया नहीं है कि क्या कलम होते हैं, क्या सेक्शंस होते हैं। अब कल रात को जो कलम लगाए गए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ये क्या थे जी। उससे आपको पता चल जाएगा सर कि ये कितना, ये नॉर्मल केस उन्होंने बनाया है। एक उन्होंने लगाया है 79, दूसरा लगाया है 281, तीसरा लगाया है 125 और चौथा लगाया है 185। जी जी। तो कलम के बारे में नहीं जानती हूं। अब जैसे कि सर ने मुझे इतने अच्छे से समझाया है कि क्या होना चाहिए था। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो मेरे आंखों से पुलिस स्टेशन में देखी। वो राहिल खान, जब उसने रोड पे बदतमीजी की, सब कुछ हुआ, इतना गंदगी करने के बावजूद जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, जो पुलिस स्टेशन में, स्टेशन हाउस में जो उनका बेंच होता है, टेबल है जहां पे वो लोग कार्रवाई करने के लिए लैपटॉप रखते हैं, उसने उसके ऊपर पैर रख दिया और वो ये बोल रहा है कि तुम लोगों को पता है अभी मेरा बाप यहाँ पे आएगा ना, ये पूरा पुलिस स्टेशन खरीद लेगा। और क्या हुआ राजश्री? हेलो शिव जी जी, बताइए आगे। जी, उसके बाद जी उसके बाद मुझे लगा आप बोलने वाले हैं। उसके बाद उसके वो जिनका जो फादर का जिक्र कर रहा था, वो जावेद शेख, मुझे लगा पता नहीं ऐसा कौन सा महात्मा आने वाला है
जिस तरीके से वो बोल रहा था, जावेद शेख, वो तो लाइक खोदा पहाड़ निकला चुहा ही था। एंड उनकी मदर आई थी, उन दोनों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि आप एफआईआर मत डालिए मेरे बेटे पे, मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी, उसका करियर खराब हो जाएगा। मैंने उनको पूछा आपका बेटा करता क्या है, उसका करियर क्या है, आप मुझे बताइए। लोगों के ऊपर गाड़ियां चलाना, ड्रंक और ड्राइव करना, उसका क्या करियर है? लोगों जिनके ऊपर वो गाड़ी चला रहा था, 3 लोग और एक कुत्ता बार बार बचे हैं, वो लोगों ने अपने आप को बचाया, वो फुटपाथ पे चले गए। मैंने कहा लोगों का करियर चला जाएगा, आपको चलेगा, लेकिन आपके बेटे का करियर बचना चाहिए। उसके बाद उनकी मदर का कहना था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, अगर आप मॉर्निंग में उसको देखोगे तो आप बोलेगे ओ माय गॉड कि आपका बेटा इतना अच्छा है, ये इतना सीधा है। मम्मी उनकी अच्छे से उसको फेवर कर रही थी, बल्कि उसको वहां पे उनको 2-4 अपने बेटे को लगानी चाहिए थी, उसको दिखाना चाहिए था कि तूने क्या किया एक औरत के साथ। एक औरत को औरत की हेल्प करनी है, ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। बदले में मुझे कन्विंस किया जा रहा था, मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और पूरा एफआईआर डलवा दिया।